Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. So as you know, I already started the exercise series. Here is the exercise 2.2. Chapter is relation and function. There are three questions. First question is, let A is the set containing 1 to 14 natural number. Define a relation R from A to A by this relation is defined here. Write down its domain, codomain और range निकालना है. तो रिलेशन को ऑब्जर्व करना होगा. यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं. So relation R contain such pair if this condition satisfied, pair X and Y belongs to this set up to 14. So first observe this condition. This condition is nothing but the given condition on relation. So that X comma Y, so that X 3X is equal to Y. इसे बोल सकते हो 3X is equal to Y. Yes. So Y is in the multiple of 3. Whenever Y is in the multiple of 3, then this XY pair belongs to that, where X comma Y belongs to set A. This implies if X is equal to 1, Y is equal to 3. Is it? If X is equal to 2, Y is equal to 6. If X is equal to 3, Y is equal to 9. If X is equal to 4, Y is equal to 12. After this, if X is equal to 5, 5 3 is a 15. 15 is not a member of this A set. That's why this much pair are there only. So this is the roster form. So this relation R is given by 1 3, 2 6, 3 9 and 4 12. So this is what the relation is in the roster form. पहले तो roster form में मैंने लिख दिया है. तो domain तो पता है, domain is nothing but the set from which we are defining the relation or the functions. So this set A domain is A itself. तो set A क्या है? 1 2 3 and so on up to 14. Okay. So actually domain कई बार ये भी लिखा जा सकता है कि 1 2 3 and 4, this much. Okay. तो जैसे कि यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक मैप ले रहे हैं, दैट्स मैटर. अब यहाँ पे ए सेट है तो हम ए सेट से डोमेन मानेंगे. कोडोमेन, कोडोमेन इज नथिंग बट द होल सेट दिस ए. कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा? सेट ए अगेन एंड सो ऑन 14. रेंज इज द डिफरेंट. रेंज क्या होती है? ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए हु हैव प्री इमेज. हु हैव प्री इमेज मीन्स हु हैव रिलेशन, बैक रिलेशन. तो यहाँ पे 3 को रिलेशन है, 6 को रिलेशन है, 9 को रिलेशन है और 12 को रिलेशन है. दिस दैट इज रेंज इज इक्वल टू आर सेट में यहाँ पे मान लेता हूँ आर डैश मान लो, क्योंकि आर ऑलरेडी रिलेशन को मैंने नोटेशन दिया है. तो दैट इज 3 6 9 एंड 12. So this is what domain, codomain and range. Similarly for this, define a relation R on the set of natural number, where R relation is defined by this, where X is strictly less than 4. Strictly less than 4 है यहाँ पे. XY belongs to natural number. Depict or represent. Depict means represent this relation using the roster form. जैसे कि हमने इसको किया है वैसे ही इसको भी represent करना है. So that is for homework. मैं यहाँ पे hint लिख रहा हूँ. Hint for this question. एक्चुअली रिलेशन ही बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म बता देता हूँ तो आपको इजी जाएगा उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने में. सो एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ वाई इज सम ऑफ दिस एक्स एंड 5. सो एक्स की वैल्यू जब भी 1 होगी यहाँ पे वाई 6 होगा. एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, है ना. सो 1 6 2 7 3 8 and 4 is not there. So x की वैल्यू यहाँ तक ही कंसिडर करने है और नेचुरल नंबर है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 1 2 3. So this is what the roster form. और यहाँ से रेंज बता सकते हो आप सिंपली 6 7 8 is the range, the set 6 7 8. For this one, question number 3, given set A
containing 1, 2, 3 up to 5 and B containing 4, 5, 4, 6, 9. Define a relation R from A set to B set by this. R is x comma y such that x minus y is odd where x belongs to A, y belongs to B. तो x minus y odd होना चाहिए. तो 1 minus अगर 4 करूँ मैं, x y belongs to that B set है ना. So x minus y पॉजिटिव ले लो. x minus y is 3. 3 is odd. 2 minus 4. वैसे ही ये सारे नंबर निकालते जाएंगे. अब देखो यहाँ पे रिलेशन R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. So this x minus y, that is 1 minus 4 is odd. Then 1 minus 6. 1 minus 6 is odd. 1 minus 9 is not odd. That's why these two pairs are only there. 2 minus 4 is even. 2 minus 6 is even. 2 minus 9 is 7. That's why it is here. 3 minus 4, that is 1. So 3 4 आएगा इसमें. मैं निगेटिव स्किप कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं कि 3 minus 4 is minus 1 एक्चुअली, बट ऑड देखना है सिर्फ. निगेटिव ऑड बोल सकते हो उसे. 3 4. देन 3 6 आएगा क्या. 3 6. हाँ 3 6 भी आएगा. 6 यहाँ पे 3 9 नहीं आएगा. देन 4 4, दैट इज 0. 0 उसका मेंबर ही नहीं होगा. 4 minus 6 it is 2. It is again not member. 4 minus 9, that is minus 5. number 5. So 4 5 4 9 ये भी आएगा इसमें. Then 5 4, that is ये मेंबर होगा, ठीक है. Then 5 minus 6 1, that is 5 6 भी इसमें आएगा और ये लास्ट वाला नहीं आएगा. That's why these are the only members. अब यहाँ पे x minus y ऑड होना चाहिए ऐसे बोला है. अगर y minus x भी के लिए बोला होता तो ये भी हमें देखना पड़ता. 4 minus 1 6 minus ये 6y ये भी पेयर आते, ठीक है. So that is what the roster form of this question. I hope you understand this one, question number 1, 2 and 3. Okay. So this is what question number 4, 5, 6, 7 and 8, 9. So question number 4 says that in the following figure show the relation between two sets P and Q. This is P set, this is Q set. तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इट्स डोमिनेंट रेंज. सो फॉर फर्स्ट वन सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो गिवन सेट, पहले पैटर्न पे चलो. सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर लिए हैं. 5 3 6 इज मैपिंग टू 4, 7 इज मैपिंग टू 5. सो यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है. 5 minus 2, 6 minus 2, 7 minus 2. सो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस रिलेशन आर एज रोस्टर फॉर्म. एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, या फिर बोल सकते हो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू सेट. सो दिस इज व्हाट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस. अब रोस्टर फॉर्म के लिए, रोस्टर फॉर्म में सिंपली इसका क्या आएगा. आर सेट रिलेशन है. सिंपली एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे. 5 3 को मैप हो रहा है, 6 4 को मैप हो रहा है और 7 5 को मैप हो रहा है. एकदम सिंपल. व्हाट इट्स डोमेन एंड रेंज. सो डोमेन तो यहाँ पे दिख रहा है 5 6 7. डोमेन थर्ड के लिए देखो. डोमेन इट्स द सेट 5 6 7. देन कोडोमेन 3 4 5. और यहाँ पे देख सकते हो रेंज भी क्या है, सेम है 3 4 5. क्यों. क्योंकि हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्री इमेज है. मतलब यहाँ पे 3 के लिए 5 है, 4 के लिए 6 है, 5 के लिए 7 है. तो यहाँ पे हर के लिए, हर एलिमेंट के लिए पेयर है. दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज अगेन सेम एज द कोडोमेन. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 रेफर द क्वेश्चन नंबर 4 3 और 2 और 1.
ठीक है, डोमेन कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, डोमेन कोडोमेन रेंज निकालना है, एक रिलेशन डिफाइन किया है। ये दोनों होमवर्क के लिए है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, राइट द रिलेशन आर वेयर x comma x cube x is a prime less than 10. So how many primes are there? पहले ये निकालो, which are less than 10. 2 is the least prime, ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद आएगा 3, देन 5, देन 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। So these are only 4 primes between 1 to 10 which are less than 10. इन हमें ये रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में, और रिलेशन कैसे है, x कॉमा एक्स क्यूब। सो रोस्टर फॉर्म में सिंपली हम कैसे लिखेंगे इसे, x मतलब 2 इस सेट में से है ना, 2 कॉमा 2 का क्यूब 8, 3 कॉमा 3 का क्यूब, देन 5 कॉमा 1 एंड दिस 7 कॉमा इसका क्यूब करो, ठीक है, 7 का क्यूब आएगा यहाँ पे, ये सॉल्व करो, अरिथमेटिक है बाकी। सो ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो, क्वेश्चन सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू दिस सेट, b इज इक्वल टू दिस सेट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। अब पहले रिलेशन की डेफिनेशन समझनी होगी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए। रिलेशन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है। सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट इज रिलेशन, है ना। देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी आर देयर, ये क्वेश्चन होगा। ए क्रॉस बी में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 टू 6 एलिमेंट्स आर देयर। ए क्रॉस बी हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, सही है। सो जो भी 6 एलिमेंट है, इन 6 एलिमेंट में से हम कुछ एलिमेंट लेके सबसेट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैसा रिलेशन होना चाहिए या फिर कोई कंडीशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑल रिलेशंस। सो 6 एलिमेंट है, तो इसके हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर दिस 6 एलिमेंट सेट, हमें पता है पावर सेट ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। पावर सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सो number of elements in power set of A cross B is nothing but the number of relations. So how many are those? 6, sorry 2 to the power 6। पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, 2 to the power n, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे, 2 to the power 6। so that is what the answer. So number of relations from A to B where A has number of elements 3, B has number of elements 2 is 2 to the power 6। that is इसमें अगर m एलिमेंट है, इसमें अगर n एलिमेंट है, तो 2 to the power mn are the number of relations। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। For the last one, question number 9, let R be the relation on a set of integer defined by this relation a comma b such that a comma b belongs to set of integer a minus b is an integer। अब मुझे बताओ, कोई भी अगर दो इंटीजर लेंगे हम, सपोज -2 है और 3 है, इनका अगर सब्सट्रैक्शन करें -2 -3, ये -5 जो आ रहा है, मतलब रिजल्ट जो मिल रहा है, जो भी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन अगेन अ इंटीजर, तो किसी भी नंबर के लिए मतलब a माइनस बी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर a इंटीजर है, सिंस a माइनस स्मॉल a माइनस b इज इंटीजर फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अगर हर इंटीजर के लिए ये a माइनस बी इंटीजर हो रहा है, दैट मीन्स हर एक पेयर, हर एक एलिमेंट इसमें आ रहा है a कॉमा b, मतलब क्या
a comma b such that a comma b belongs to set of integer. ये सेट बन रहा है सिंपली दिस सेट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन. ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन एक्चुअली ये है सिंपली a comma b such that a comma b belongs to set of integer. तो सारे पेयर यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब सारे एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी, a कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में, दैट इज डोमेन. कोडोमेन क्या होगा, जेड में, मतलब पूरा जेड आएगा, और रेंज भी क्या आएगा, पूरा सेट ऑफ इंटीजर. हेंस हेंस यहाँ पे क्या पूछा है, डोमेन और रेंज ही पूछा है. डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर एंड range is again set of integer. Okay, so that's it. I hope you understand question number 4 to 9. So subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates.